Okay, very good morning, children. As you can see on the board, I have written the name of the chapter, staffing. Basically, if you are like considering it, CBSE में ये जो syllabus हमारा curriculum design हुआ है बेटे, it is like all the functions of management. You remember? Functions. Management के functions we have done. What are the functions? One is planning, and then organizing. Then staffing, directing and controlling को भी हम skip कर रहे हैं because right now we have to discuss this. तो planning is already done. Chapter number 4 planning था. CBSE ने curriculum ऐसे डिजाइन किया कि पूरे जो हमारे 5 functions of management है इसके 5 chapters बन जाए. Like this. This is chapter number 4, 5, 6, 7, 8. 8 chapters and our book will be over. So these 5 functions are the names of basically different chapters. So when I am taking your online assessment, video calling say, I am asking most of the children, I am asking this question functions of management batao. And you don't know. Most of you know, but some of the children, they don't know. And the one who are telling me, they are saying, organizing, controlling, staffing and planning and so on. बेटे you have to tell it in a sequence. इसका एक साइकिल है. पहले आपकी स्कूल में एडमिशन होती है, क्लासेस लगती है, फिर पेपर होते हैं. ऐसा नहीं होता पहले पेपर होते हैं, फिर क्लासेस लगती है, फिर एडमिशन होती है. ऐसे होता है. पहले एडमिशन होती है, फी सबमिट होती है, फिर आपको स्कूल सर्विस देता है, क्लासेस देता है, फिर आपके एग्जाम्स होते हैं. तो सिमिलरली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पहले प्लानिंग होगी. Once planning is being done, then organizing will be there. What is organizing? It is organizing. Planning means. चलिए बताइए. Who will tell? Okay, Vasudev, you can unmute yourself and answer. What is planning? Vasudev, you can unmute yourself. I am asking you to unmute. Click करो वहाँ पे. नहीं हो रहा. चलिए, no problem. You can write in the chat box. I'll read it from there. Ketan, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, planning is a primary function of management. It means to deciding in past what we have to done in future. Deciding in past, नहीं, deciding in advance. Deciding in present. Deciding in present what we have to done in future. Present, that what we want to do in the coming future. So planning is the primary function wherein we decide कि what we want to do. हम चाहते क्या है करने, हम चाहते क्या है करवाना अपने organization में. That is planning. Number 2 is organizing. Now what is this organizing? हमने इसमें क्या पढ़ा? Okay, Anirudh want to answer. Yes, Anirudh. Organizing means allocation of all the resources for the smooth functionings of the organization and establishing the reporting relationship in the organization. Okay, very good. Vasudev has written in the chat box. It is thinking beforehand to do something about planning, and Vanshika Kapoor is also writing. Planning is thinking in advance what to do in the coming future. Very good. Both of you are absolutely correct. And Anirudh is saying about organizing. Organizing means allocation of resources. जैसा कि अनिरुद्ध ने बोला, हमारे पास अलग-अलग टाइप के resources होते हैं, man, material, and the other like resources are there, and then we will allocate that इतने persons इस department को, इतने persons इस department को, इतना finance इस department को, इतना finance resources. Like this when we allocate. और बिल्कुल easy करना है तो जो हमने प्लान किया, पुटिंग प्लान्स इनटू एक्शन, उस प्लान को हमने एक्शन में लाया तब ऑर्गेनाइजिंग में. इन ऑर्गेनाइजिंग वी हैव डिसाइडेड दीस ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी देयर. इस डिपार्टमेंट में 6 पीपल विल बी वर्किंग. एक हेड होगा, 5 बंदे अंदर काम करेंगे. इस डिपार्टमेंट में वी नीड 12 पर्संस. इस डिपार्टमेंट लाइक दिस. सो ऑर्गेनाइजिंग में ऑल दीस थिंग्स आर बीइंग डिसाइडेड. रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी हमने डिसाइड कर ली है कि जो एक सीनियर होगा वो इसको रिपोर्ट करेगा, उस सीनियर के अंडर 5 बंदे वो इसको रिपोर्ट करेंगे. लाइक दैट. Now, what is staffing basically? Staffing, as the name suggests, okay,
कुछ बच्चे आंसर करना चाहते हैं। सान्या, यस सान्या। Staffing means finding right people for right job and estimating manpower requirements. Very good. It is basically something related to staff. तो staffing word जो है वो कहाँ से बना? Staff से बना. When we are saying staff, staff means what? Benches, walls, fan, chalkboard. What is staff? Staff means human beings, those who are working. For example, if you think about कि मेरे को 10th में इतने marks आए. For example, you got 95% marks in your 10th board exams. So if I ask you to enlist all the resources, आपको इतना रिजल्ट लाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे? आप बोलोगे मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी बुक्स ये मैंने फॉलो की, इस सैंपल पेपर से तैयारी की, 8 घंटे पढ़ाई की मैंने, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया आपके सक्सेस में? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल था, that was being played by the staff of the school, those who have taught you. Got it? अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ते जहाँ पे स्टाफ मान लो इनकम्प्लीट होते ही नहीं सारे सब्जेक्ट के टीचर, कई ऐसे भी स्कूल होते नहीं होते, और द स्टाफ वुड नॉट बी इन लाइक इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, you would not be able to get these type of like good marks. So the most important रिसोर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल में बहुत अच्छे स्कूल का रिजल्ट आता है, टॉप पे है पूरे फगवाड़ा में, सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फॉर एग्जांपल स्वामी संतोष पब्लिक स्कूल का। तो व्हाट इज दिस व्हिच इज ब्रिंगिंग लाइक फेम एंड नेम टू द स्कूल? वो कौन है, वो क्या है जिससे स्कूल का नाम होता? बिल्डिंग से। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, इतने सारे रिसोर्सेज है। नो, इट इज द स्टाफ, इट इज द ह्यूमन रिसोर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाफ, इट मींस द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो प्रिंसिपल है, जो वाइस प्रिंसिपल है, जो एचओडीज हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं वहां पर, बच्चे भी तो अच्छे होंगे, अकेले टीचर बेंचेस पे थोड़ी पढ़ाएंगे। जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे पास ग्रेड 4 एम्प्लॉइज है जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमारे अच्छे ड्राइवर कंडक्टर, सो ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज हु आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये स्कूल था, इसमें बच्चों को छोड़ के बाकी सारे जो है दे आर अ पार्ट ऑफ स्टाफ, ठीक है। बच्चे क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स ऑन विच वी आर वर्किंग। यू आर कमिंग टू द स्कूल एज रॉ मटेरियल इन क्लास 9 नर्सरी, and you are going out in the form of asset for the society, which the teachers are converting you from nursery to class 12 into the finished goods. Those finished goods, those assets which can build the future of the nation. समझ गए? So that is the only reason why I am not including students in staff, except students को हमारे लिए वो है, हमारा टास्क है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारे गुड्स हो आप, हमने आपको पॉलिश करना है, हमने आपको रिफाइन करना है, हमने आपको बनाना है हमने। So rest everyone is a human resource, and human resource is the most important aspect or most important resource in any organization. पैसा, दीवारें, बेंचेस कुछ भी अच्छा ना हो, स्टाफ अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ की कहाँ पहुंच सकती है, ठीक है जी। सो स्टाफिंग इज द, मैं सपोज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन all the functions of management. जितना important planning करना है उतना ही important है staffing करना। Staffing क्या है? अगर हम simply 2-3 words में आपको मैं बोलूं तो we can say putting people to jobs, putting people on various jobs. This is staffing. लोग तो दुनिया में बहुत है, फगवाड़ा में so many people are there, but we have to identify some individuals, some human beings, and then put them on the jobs. For example, हमारे पास job है एक accountant, जो cash calculate करेगा, sheet करेगा, उसका record रखेगा। So हमें एक accountant की job है हमारे पास, तो हमने क्या करना है? हमने identify करना है, then we put right people on this job. तो putting people on jobs के साथ हम एक और यहाँ पे ये कीवर्ड है, कीवर्ड, one more keyword, right person. हमें right person को कहाँ लगाना है?
in the right position. ठीक है जी, ये दोनों हमारे कीवर्ड्स है स्टाफिंग के. अगर आपको इस तरह से लिखा हो राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन, सेम. पुटिंग पीपल ऑन जॉब, सेम. वन मोर कीवर्ड कैन बी देयर व्हिच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई व्हाट इज स्टाफिंग. इट इज फिलिंग वेकेंट पोस्ट. जो वेकेंट पोस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट है एक गेट कीपर की. फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए हमारे को, एक जिसके पास मतलब गनमैन हो, हु कैन हेल्प अस टू लाइक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, स्कूल को प्रोटेक्ट करता है, जो नाइट शिफ्ट में ड्यूटी दे. यू शुड हैव अ गन. तो गनमैन की एक रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल. सो दिस इज अ वेकेंट पोस्ट. कौन सी पोस्ट? दैट वी नीड अ गनमैन फॉर सिक्योरिटी पर्पस. दिस इज अ वेकेंट पोस्ट. सो व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वेकेंट पोस्ट को फिल करते हैं. हम क्या करते हैं? वेकेंट पोस्ट को फिल करते हैं. नंबर 1. नंबर 2, एक बार फिल कर दिया, गनमैन की पोस्ट पे एक बंदा अपॉइंट कर दिया. नाउ दैट गनमैन हैज लेफ्ट द जॉब, ही इज नॉट whatever reason, he got some government job or he got some job in the bank or whatever, so he left the job. So this is another line that you are supposed to, number 1, filling the vacant post, and then make sure that these job positions are keeping filled. दूसरा क्या वर्ड है हमारा? कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस या जॉब पोजीशंस लिख देते हैं. समझ गए? तो ये नहीं है कि आपने एक बार पोस्ट को वेकेंट को फिल करना है, आपने एक बार फुल फिल करना है, वो फिर वेकेंट हो गई, आपने फिर से उसको फिल करना है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज कीपिंग फिल्ड द जॉब पोजीशंस. जो हमारी वेकेंट पोस्ट है एक बार फिल भी करना है, and then make sure that it is filled. Okay, some child is giving me answer. Organizing is grouping and defining activities and establishing reporting relationship among them. Staffing is the placing of right people to do the right task. Very absolutely correct answer Vanshika is writing. So I hope staffing is clear. Okay, can any one of you please tell me this process or this job of staffing is done by who is going to do this? Anyone of you can, okay, write in chat box. Those, all of you, those who know the answer, please write in chat box. Then I will read what are your answers. Okay, एक बच्चे ने लिखा है मिडिल लेवल, एक बच्चे ने लिखा है मैनेजर, एक बच्चे ने लिखा HR मैनेजर, HRD, HR, ओके. पर्सनल मैनेजर, पर्सनल बेसिकली जो पर्सनल मैनेजर है he will get some department. Okay, so I think most of you are right. एक दो बच्चों का थोड़ा सा वो है. मैनेजर तो इसको मिटा दे, मैनेजर तो डेफिनेटली करेगा, बट विच मैनेजर? दिस इज बेसिकली द वर्क ऑफ HR डिपार्टमेंट. इसको हम कहते हैं ह्यूमन resource management. Human resource management is a basically the work which will be done by HRD, मतलब HR department. तो human resource management एक process होती है जो कौन करता है? HR department का जो मैनेजर है डेफिनेटली वही करता है. Who will do? The manager of this department. ठीक है जी. और यू कैन से दिस डिपार्टमेंट इन इटसेल्फ. ये डिपार्टमेंट अब क्या होता है? दिस डिपार्टमेंट्स वर्क बेसिकली इट इंक्लूड्स सम पीपल. इनके अपने भी कुछ इंडिविजुअल वो होंगे, मतलब सम पीपल माइट बी वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट. वो लोग जो बाकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं इंक्लूडिंग देमसेल्व्स. ठीक है, तो दैट इज द वर्क ऑफ HR डिपार्टमेंट. समझ गए? इसके अलावा एक और बात है,
मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक जो छोटी हमारी स्मॉल स्केल कंपनीज होती है, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे इस डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक आपका एक पैलेस है, मैरिज पैलेस, इन दैट मैरिज पैलेस हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, वी हैव अपॉइंटेड अ मैनेजर वन टू इवेंट को कुछ सुपरवाइज करने के लिए, एंड सम वर्कर्स दे आर आल्सो वर्किंग ऑन लाइक डेली वेजेस, जितने दिन काम होगा उतने दिन पैसा मिलेगा, बाकी तो कैजुअल वर्कर्स आर देयर। सो डू यू थिंक कि इन अ पैलेस वेयर hardly 20 to 30 people are working, you need HR department which will make sure कि who is being recruited, किसको रखना है, किसको कितनी सैलरी, no. So these type of organization don't need HR department. Like in the school, for example, if 50 staff members are there, they are effectively managed by the school authorities, जो भी हमारे principal, vice principal and other members of the management, they can manage it. So it actually doesn't require a separate HR department. ठीक है, so this is another point. This department is required where the number of workers is large, wherein more than say 100 persons are working. So you have to make sure that all the people are being satisfied with their work. So now we are going to discuss, हम यहाँ से हटके basically मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जो HR मैनेजर होगा उसका रोल क्या है, वट ऑल थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय दिस डिपार्टमेंट, क्या काम करेगा वो, वट डू यू थिंक, राइट इन द चैट बॉक्स और यू कैन रेज योर हैंड आल्सो, राइट इन द चैट बॉक्स। ओके केतन, यू कैन आंसर, अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, first of all, he will identify whichever jobs are vacant in the organization, and second, he will find the right person for the job, and third, he will decide the salary accordingly. सैलरी अगर उसको परमिशन होगी देन ओनली ही विल बी एबल टू, अदरवाइज बेसिकली क्या होता है, अब क्योंकि हम बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, वासुदेव इज सेइंग इट अपॉइंट्स एम्प्लॉइज, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी सैलरी बेटे जो डिसाइड करनी है ना वो तो डिपार्टमेंट वाला करेगा। अब मैं बात कर रही हूँ जब HR डिपार्टमेंट की, तो ये ऐसी कंपनी है जहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो ही इज अपॉइंटेड पीपल। हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, मेरे पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन सब डिपार्टमेंट्स में who will work? Okay, one child is saying will appoint the people according to their capability, that is absolutely correct. Then training and development is another very very important point, absolutely correct. तो ये जो HR मैनेजर है, पहली बात तो सबने ये बता दिया, this is absolutely correct, कि वो अपॉइंट करता है, he will appoint people for which department? Okay, Vasudev, you want to say something? Yes, you can unmute if possible. मैम HR मैनेजमेंट को मैम पता कैसे लगा कितने में बंदे चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में? ये डिपेंड करता है ना, HR डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या होता है, आपकी कंपनी जितनी बड़ी उतने ज्यादा लोग रिक्वायर्ड है, ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी उनको कैसे पता लगेगा? फॉर बेटे देखो, फॉर एग्जांपल हमने 4 बंदे अपॉइंट कर लिए, उनमें एक मैनेजर है, 3 उसको हेल्पर दे दिए, नाउ दे आर डूइंग द वर्क, but after some time they feel that it is very difficult for us to manage everything because a number of things are to be done at the same time, so they need more people in their department, they ask for the same to their HR, मतलब जो उनका HOD होगा वो बोलेंगे नहीं, we need more people, we can't manage it on their own. Like एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में जीवन सर वाज होली वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज. Now as the number of students are increasing in this school, so they think that there is a need for making another department or another sections are required, so they need more teachers, so he gave this like request डाल दी कि हमें इतने बंदे एक्स्ट्रा चाहिए. So now this is the decision of the top level management, how many people they will allot you. Like every time it happens, आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल इस प्रोडक्शन मैनेजर को
20 वर्कर्स मिले हैं काम करने के लिए और उनको लगता है कि मेरी सारी मशीनों पे 20 वर्कर्स आर नॉट सफिशिएंट, व्हाट ही विल डू? He will demand for more people. When he will demand for more people, who will answer? Who will allow or allot? Top level management will allot them. कि हाँ जी आपको 20 थे, ये कहता मुझे 10 बंदे और चाहिए कम से कम, अगर टाइमली काम चाहिए, नहीं तो फिर वेट करो। तो टॉप लेवल कहती देखो 10 नहीं दे सकते, हमारा बजट इतना नहीं है, हम आपको 5 बंदे दे देते हैं, आप उनको डबल डबल शिफ्ट में काम कराओ। समझ गए? लाइक दिस दे यूज्ड टू डू इट। इट इज बेसिकली द डिसीजन इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है जी। अब एचआर डिपार्टमेंट ने करना क्या? इनका क्या काम है? इन्होंने डिमांड की मुझे 10 बंदे चाहिए, टॉप लेवल ने बोला नहीं 5 ही बंदे मिलेंगे। वो जो 5 बंदे इन्होंने और अपॉइंट करने हैं, 5 और प्लस करने हैं, who will decide that those 5 people? अब ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है इसका काम है प्रोडक्शन करना है, ये इतना फ्री नहीं बैठा हुआ कि he will go and search for the prospective, like कोई potential हमारे एम्प्लॉइज कौन हो सकते हैं, कौन सुटेबल पर्सन है। दिस इज द वर्क टू बी डन बाय एचआर मैनेजर। इसने बता दिया मुझे बंदे चाहिए, टॉप लेवल ने बोला 5 बंदे अपॉइंट करो, who will appoint? HR department will appoint. How they will appoint now? Just listen it carefully. For example, the persons who like इनको जो बंदे चाहिए, एक ITI होता है, ITI सुना होगा सबने? ITI इंस्टीट्यूशंस होती हैं हमारी जहाँ पे जो लोअर लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं, those who are getting the technical training of the machines, they are being appointed. So in case they want some technical persons at the lowest level, मतलब इनको चाहिए वर्कर्स लेवल पे लेकिन टेक्निकल बंदे हो, तो इन्होंने एचआर को बता दिया हमें वो बंदे चाहिए। एचआर विल रिक्रूट। नाउ मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखती हूँ, आपके लिए शायद न्यू वर्ड्स होंगे, but we will discuss the meaning of those words. Now HR people, what they do? Number 1, they will recruit. Now what is the meaning of recruit? Recruit word का बेटे मतलब होता है they will give advertisement in the newspaper, they will give advertisement on the gate of the, like हमारा जो फैक्ट्री का गेट होगा वहां पे नोटिस डाल दिया। देखा होगा आपने कई बार दुकानों के बाहर लिखा होता है काम करने के लिए लड़कियां और लड़के व्हाटएवर पीपल आर रिक्वायर्ड, अकाउंटेंट चाहिए, कैशियर चाहिए, कई सारी शॉप्स के बाहर, बिजनेसेस के गेट के बाहर उन्होंने नोटिस लगाया होता है। दिस कैन बी डन। न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे दिया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में दे दिया, मैगजीन्स में दे दिया, और एचआर डिपार्टमेंट की अपनी चॉइस है। दे कैन डू प्लेसमेंट थ्रू द कैंपस सिलेक्शन, कैन आल्सो बी। कैंपस सिलेक्शन सुना है कभी आपने? कैंपस सिलेक्शन होता है जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहां पे कंपनीज वाले जी, ये एचआर की टीम जाएगी कैंपस सिलेक्शन के लिए इन सम कंपनी। फॉर एग्जांपल किसी आईटीआई कॉलेज में चले गए, दे विल गो टू सम आईटीआई कॉलेज। अब एचआर वाले बंदे को क्या पता कि टेक्निकल क्वेश्चन कौन से पूछने हैं, किस बंदे को अपॉइंट करना है। सो एचआर की टीम के साथ 1 person फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल आल्सो गो व्हेन दे विल डू द, मतलब इंटरव्यू लेंगे या सिलेक्शन करेंगे। At that time, 1 person from this department will also be there who will ask related questions. For example, when the school people they ask कि हमें एक new commerce teacher चाहिए, तो interview was being conducted, and in the interview, management people were there, principal, vice principal, all of them they were there, but specially 1 person from the department was there. Means the department का जो हमारा commerce department का कोई ना कोई एक representative होगा who will check कि इस बंदे को जो कैंडिडेट आया है उसको कॉमर्स की नॉलेज है कि नहीं है। समझ गए? सो दैट इज हाउ दे यूज्ड टू डू। सो नंबर 1 is the recruitment process. Recruitment means when we are calling the prospective employees to apply for the post. हमारे पास पोस्ट निकली है तो हम बोलते हैं लोगों आओ अप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अकाउंटेंसी के टीचर के लिए फॉर एग्जाम्पल 40 people have applied. So that is a result of recruitment. Newspaper में मैंने article पढ़ा and I have applied. Other than me, 39 more people were there, those who have applied for this post. Then the second step comes of selection. अब उन बंदों में से for example 40 बंदे हमारे पास आ गए थे, हमें तो एक ही बंदे की पोस्ट थी, तो हमने उन 40 में से सिलेक्ट करना है। What we have to select the best. आपने पहले पढ़ा था ना यहाँ पे एक right person at the right job. तो परफेक्ट जो बंदा हमको लगता है सुटेबल फॉर दैट पोस्ट उसको हम सेलेक्ट करते हैं। हु सेलेक्ट्स? एचआर की पूरी टीम along with the representative of the particular department
along with the representative from the top level management. वो भी बैठते हैं. अगर किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए बंदा अपॉइंट हो रहा है, अगर कोई छोटी मोटी पोस्ट है, देन टॉप लेवल डजंट इंटरफेयर. वो बोलते हैं आप खुद ही कर लो, हमने नहीं बैठना. किसको पियोन रखना है, किसको ड्राइवर रखना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी. अदर देन दिस, बंदों को अप्लाई करने के लिए बुलाया एंड देन सेलेक्ट किया. आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, इज देयर वर्क कंप्लीट? एचआर ने इसके अलावा भी कुछ करना है. व्हाट टू डू? वासुदेव, यू वांट टू से समथिंग अगेन? यस. मैम उस बंदे को प्लेस करना पड़ेगा, उसकी ड्यूटीज वगैरह बतानी पड़ेंगी. यस, डेफिनेटली बतानी पड़ेंगी. उसको बोलते हैं, वो भी मैं आपको बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. हम उसको उसकी जॉब प्रोफाइल बताएंगे कि व्हाट इज योर वर्क, व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू बिकम क्लास टीचर बनना पड़ेगा, आपको हाउस मास्टर बनना पड़ेगा, आपको XYZ ये काम करना पड़ेगा, अदर देन दिस आपको ये काम करना है. सो लाइक दिस जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब प्रोफाइल इज बीइंग डिस्कस्ड. Okay, one more child is writing. This is another duty of HR department to provide salaries on time. Timely उनको salary मिल जाए. Ketan, you want to say something? Ketan? Ma'am, I was going to ask the same question. हम यहाँ लिखा कि सैलरी देते हैं वो. Okay, salary देते हैं. बेटे देखो, अभी ध्यान से सुनना. Salary देना HR department का काम नहीं है. सैलरी डिसाइड करना टॉप लेवल ने पहले से बताया होता है कि इस पोस्ट पे जो बंदा आएगा ना, उसकी ये सैलरी होगी. उसमें ये फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें एक सुपरवाइजर रखना है, सुपरवाइजर की सैलरी 20,000. तो इस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर की सैलरी भी उतनी होगी, इस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर. तो वो HR उसमें कुछ नहीं कर सकता. जो सैलरी एक बार टॉप लेवल ने डिसाइड कर दी कि इस पोस्ट की ये सैलरी, फॉर एग्जाम्पल स्कूल की देती हूँ, जो हमारे PRT टीचर होते हैं 1 to 5 पढ़ाते हैं. तो PRT टीचर्स आर बीइंग अलॉटेड विद वन सॉर्ट ऑफ सैलरी, whatever is being mentioned in the job profile, job description by the top level management. Then the other category, say from 5th onwards up to class 10th, it is called as TGT. There will be some different salary slot, and then for the PGT another salary slot will be there. So this is not the choice of HR कि ये कैंडिडेट हमें अच्छा लगा, इसको 2,000 ज्यादा दे देते हैं, ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है रख लेते हैं पर सैलरी कम दो. नो, दिस विल नॉट बी देयर. वंस द रूल्स which have been made by top level, that will be again and again followed for all the individuals. Now what is the role of HR department? HR का काम ये, आप अपॉइंट होगे, आप HR के पास जाओगे, हाँ जी मुझे अपॉइंट की सर बताइए. We will tell you आपकी ये पोस्ट है, ये काम है, ये सैलरी है, इस डेट को आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी. Whatever date is being mentioned in the employment का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मेंशन होता है. ठीक है, इनका काम है सैलरी बनाना. अब ये सैलरी बनाते कैसे हैं? कभी आपको शायद आपने सुना नहीं होगा, एक प्रोसेस होती है सैलरी बनाने की भी. सैलरी कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी एक बंदा, उसकी सैलरी है 30,000, 30,000 उसकी पूरे मंथ की सैलरी. तो उस मंथ में उसने छुट्टियां कितने दिन ली? इसको 30,000 को 30 से डिवाइड कर दो, तो पर डे की सैलरी इसकी आ गई 1,000. अब अगर मान लो एक मंथ में उसने 4 दिन छुट्टी ली, 4 दिन छुट्टी में से 2 दिन उसकी मेडिकल लीव निकल गई, 2 दिन उसकी विदाउट सैलरी गई, तो 2 दिन के 2,000 डिडक्ट करके 28,000 उसको देना है. कोई और इंडिविजुअल है, उसका HR का कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया, PF का कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया. लाइक दिस if some deductions are there, किसी की सिक्योरिटी डिडक्ट करनी, किसी ने एडवांस सैलरी ली है उसका डिडक्ट करके आगे अमाउंट देना, किसी को एक्स्ट्रा सैलरी देनी है, किसी को इंक्रीमेंट लग गया, सैलरी इंक्रीज करती है, टॉप लेवल ने बोला 10% बढ़ा दो. सो हाउ मच सैलरी विल बी देयर, द टोटल अमाउंट, लाइक कैलकुलेशन वर्क, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ HR डिपार्टमेंट. अकाउंटेंट का काम नहीं है वो. अकाउंटेंट का काम है कैश मैनेज करना, कैश रिसीव करना, कैश पे करना, कैश काउंट करना, वो अकाउंटेंट का काम है. कैलकुलेशन जो करनी है HR डिपार्टमेंट में, उसके लिए HR में एक बंदा होता है, दैट इज आल्सो एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग प्रोसीजर. उसको भी अकाउंट्स आनी चाहिए, एंड दैट इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ HR department who will calculate the amount of salary to be given to an individual in the organization. That is how the salary is being calculated. It is a part of HR department, but to decide salary is not a part of the job of HR department. Other than this, और क्या काम है? जो बंदे अपॉइंट कर दिए उनकी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग करानी है,
किसी की डेवलपमेंट करवानी है। अब देखो ट्रेनिंग सबकी सेम होगी, इस डिपार्टमेंट, नो, ऑल द डिपार्टमेंट्स विल बी हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। सो दे विल आस्क फाइनेंस वालों को, आपको लगता है कि कोई ट्रेनिंग की जरूरत है? फाइनेंस वाला कहता है देखो अभी जीएसटी इंक्लूड हो गया, तो ऑल द पीपल वर्किंग इन माय डिपार्टमेंट दे डोंट नो अबाउट जीएसटी, सो वी वांट एचआर डिपार्टमेंट को कि प्लीज आप जीएसटी पे एक सेमिनार करा दो। दे विल डिमांड, दे विल फुलफिल, ठीक है, टेकिंग सीकिंग लाइक परमिशन फ्रॉम द टॉप लेवल डेफिनेटली, बट दे विल अरेंज। इन्होंने डिसाइड करना है कि किसको बुलाएंगे, कब अरेंज करेंगे, सेमिनार करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, कहाँ करेंगे, कितना पैसा पे करेंगे, ऑल दीज एक्टिविटीज। अदर देन दिस, जो हमारे वर्कर्स हैं उनको कल्चरल एक्टिविटी, उनको पिकनिक पे लेके जाना, उनकी फैमिली गेट टुगेदर्स करवाने, कोई भी और कल्चरल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब करना, these are all the part of HR department. Is it clear? तो जो हम HR डिपार्टमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, all this is the subject matter of this chapter of staffing. Is it clear? Training, development, selection, recruitment of the individuals. Moreover, किसी इंडिविजुअल की प्रमोशन, किसी इंडिविजुअल की ट्रांसफर, किसी इंडिविजुअल को एडवांस सैलरी चाहिए, किसी इंडिविजुअल को लोन चाहिए कंपनी से, all these like individuals matters will be taken care by HR. तभी इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। जिस भी ह्यूमन को किसी भी तरह की जरूरत हो, किसी भी तरह का कंप्लेंट हो, डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो दे विल गो टू ह्यूमन रिसोर्स वाले। किसके पास जाते हैं? एचआर। मान लो कोई एक सुपरवाइजर है, उसका जो एचओडी है उसको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहा, उसको डिप्रेशन फील हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे को मेंटल हरासमेंट हो रही है, तो वो किसके पास जाएगा? He will not fight with his senior, he will go to HR department. This HR department is there to listen to all the कुछ भी disputes हो गए हैं, कोई tensions है among the workers. This is the duty of HR manager, HR department to ensure कि interpersonal relations are well maintained. New Year पे wishes भेजना है, दिवाली पे मिठाइयों के डब्बे बांटने हैं, गिफ्ट देने हैं लोगों को, all this is again a part of HR department. So this is the department basically which is taking care of all the individuals, starting from the lowest level, सबसे छोटी पोस्ट से लेके सबसे टॉप लेवल तक, सब बंदों की सैलरी कैलकुलेशन, उनको सैलरी देनी, प्रमोशन, वो सब with the permission of top level, but the work is being done by HR department. Is it clear, Bindi? This is a very very interesting chapter, very important, and most of the things I think you already know. So this is your homework for today. अभी आपको मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया है. Tomorrow we are going to start with the subject matter, but I want you to revise it in advance and then give me the points like you are giving today. Okay? Now in case you have any doubt, you can ask.